Hello everyone, welcome back to our PYQ series Revised to ACE, and today very interesting topic we are going to discuss. Interesting इसलिए because of the functioning. Yes, भगवान ना करें कि कभी एयर बैग्स की या ऐसे एक्सीडेंट्स हो या कभी ऐसी ज़रूरत पड़े किसी को, कोई नौबत आए, बट प्रिकॉशनरी तौर पे एक्सीडेंट में हार्म हो, नुकसान हो, उससे बेटर एयर बैग है. सो एयर बैग कैसे फंक्शन करता है ये देखेंगे. स्पेशली how do airbags work? It came into picture after the death of the Cyrus Mistries in a road accident. फिर belts, seat belts, then airbags, government की policy आ गई, 6 airbags होंगे, what all. And recently this question was asked by UPSC in one of the exam conducted in 2023. So we'll have a look at the question as well, and through that question we will discuss the whole functioning, and it's very very important. Especially जब हम ऐसे questions आते हैं ना साइंस एंड टेक में, we will be clueless ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया. I am very sure that you must have read about airbags in your school days as well. Yeah, out of curiosity you would have read. ठीक है, so चलो क्वेश्चन लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं. So the question is, airbags work on the principle of a chemical reaction triggered by the impact producing gaseous product. अभी आधी स्टोरी तो यूपीएससी ने इधर ही एक्सप्लेन कर दिया है. They work on a principle of a chemical reaction triggered by impact producing a gaseous product that causes a sudden volume change. Which one among the following chemical conversion is responsible for this? Sodium azide into nitrogen gas, solid carbon dioxide into gaseous carbon dioxide, carbon dioxide into carbon monoxide, or it's D, the sudden conversion of gaseous carbon dioxide into the carbon monoxide. I am sure that you must be knowing it. कुछ लोगों को पूरा फॉर्मूला पता होगा, कुछ लोगों को पूरा केमिकल रिएक्शन, नॉट फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन पता होगा, कुछ लोगों को कुछ बेसिक कंपोनेंट्स याद होंगे कि किस गैस की वजह से वो इन्फ्लेट होता है. But it is important, we should know that how it works, and before that we should know that why it was in news. It was in news because of these articles. Understanding the addition of airbags mandated for vehicles. 2022 में भी न्यूज़ में था. 2022 में January, April, every time it was in news. 6 airbags could be mandatory in your car soon. Why? That's a great thing. Especially एक particular type of vehicle में, however opposition was there. M1 कैटेगरी के व्हीकल्स में मैंडेटरी किया गया था. अपोजिशन था क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी. हवर 5-6-7 हज़ार रुपये ही बढ़ता है पर एयर बैग, बट बढ़ेगा. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द airbags in India, so it has been compulsory for all the passenger vehicles since July 2019. And after this incident, when it came, government also approved the draft notification of minimum 6 bags compulsory for vehicles carrying up to 8 passenger. That category is known as M1 category, और उसमें most of the गाड़ियां इंडिया में कवर हो जाती हैं. And why this is important? जिस हिसाब से हमारा रोड एक्सीडेंट होता है, जो फैटेलिटी रेट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दिया मेंस अबाउट दिया मेंस. फिर से प्रीलिम्स के बाद हम शुरू करेंगे. दिया मेंस में वी हैव डिस्कस्ड वन टॉपिक ऑन रोड सेफ्टी, स्पेशली आफ्टर दिस इशू ओनली. साइरस मिस्त्री के केस के बाद ही हमने उसको डिस्कस भी किया था. रोड सेफ्टी डिकेड भी है, राइट? सो वी आर वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड. नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट अ कार के बारे में आप सोचते हो तो किस किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस, कहां कहां केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कार में, आपको पता चलना चाहिए. एक तो चलो इंजन में होता है, वी नो अबाउट इट. इंजन में पेट्रोल डालो, डीजल डालो, वो उससे एनर्जी आती है. देन बैटरीज, so be it the engine, be it the chemical reaction in the battery which gives us electricity, and the third one is the airbags. They are inflated from the chemical reaction itself. Now अभी होता कैसे है? So the chemical which is responsible for it is sodium azide. Sodium azide is responsible for the inflation of the airbags. ठीक है, वो इन्फ्लेट होते हैं इसकी रिएक्शन की वजह से. नाउ द केमिकल एट द हार्ट इज सोडियम अजाइड NaN3. NaN3 इज सोडियम अजाइड. दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल. नाउ रिएक्शन क्या होता है? अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस देखें इट इज स्टेबल, बट अगर उसको थोड़ी सी हीट मिलती है ना, अनस्टेबल हो जाता है. एंड जहां पे उसको हीट मिलती है इट विल कन्वर्ट इनटू Na and N2. दैट इज दिस रिएक्शन विल हैपन. Na and N2 बैलेंसिंग देख लो, 2Na and 3N2 ये बनेगा. So the byproduct here is nitrogen gas.
एंड वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, जाके हमारे एयर बैग को इन्फ्लेट करता है. एंड just 130 grams of sodium azide will produce 67 liter of nitrogen gas, which is sufficient to inflate a normal airbag. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया रिएक्शन. और नाइट्रोजन गैस जो हमारा सोडियम अजाइड है, दैट इज NaN3, दैट इज स्टेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट जैसे ही थोड़ा सा हीट हुआ अनस्टेबल हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट द सेकेंड कंपोनेंट इज इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, we should notice that it is also producing a chemical which is named sodium. और ये जो सोडियम है, it is very reactive, it is a reactive metal and it will react rapidly with water and it will form sodium hydroxide. Especially it is harmful अगर मान लो उस पूरे प्रोसेस में if it comes into contact with our mouth or eyes, then it is very reactive, तो इसलिए डेंजरस होता है. एंड इन ऑर्डर टू, जब एयर बैग में ऐसी अगर मान लो सोडियम आ जाए, सो डू यू थिंक दैट इट विल बी गुड फॉर आवर हेल्थ? दैट इज डेंजरस. एंड दस इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट और उसका हार्म हमें ना हो, सोडियम अजाइड के साथ कुछ और केमिकल मिलाया जाता है, सो दैट नाइट्रोजन का जो एक्सपोजर होता है या जो आके वो हमें इंपैक्ट करेगा वो मिनिमाइज हो जाता है, उसको थोड़ा स्टेबल कर देता है. नाउ फुल रिएक्शन कैसे होता है? नाउ देयर विल बी सेंसर्स. दो सेंसर्स व्हेन देयर विल बी इन इम्पैक्ट, दैट सेंसर विल प्रॉम्प्ट द एयर बैग टू इन्फ्लेट. नाउ दैट सेंसर विल हिट द कैनिस्टर व्हिच इज होल्डिंग द सोडियम अजाइड. दैट सोडियम अजाइड विल देन थोड़ी सी हीट मिलेगी, इग्निशन होगा, थोड़ा सा इग्निशन होगा, इग्नाइट करेगा, थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, उस हीट की वजह से सोडियम अजाइड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा एंड नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड एंड दैट विल गो इनसाइड द एयर बैग एंड एयर बैग इन्फ्लेट हो जाता है. एंड फाइनली आपको गाड़ियों में ऐसे एयर बैग दिखता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. द कैनिस्टर दैट कंटेन्स सोडियम अजाइड आफ्टर द इलेक्ट्रिक सिग्नल detonates a small amount of the igniter compound. That compound will give heat from this ignition and it will start decomposing the sodium azide, and then the generation of nitrogen gas will be there and it will fill the air bag. समझ में आया किधर से क्या प्रोसेस हो रहा है? Now if we revisit the question again, now it will be super duper easy for you. यूपीएससी ने आधा प्रोसेस तो क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया है. एयर बैग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय इम्पैक्ट. सेंसर क्या काम करता है, कैनिस्टर पे जाके एक इग्नाइटर कंपाउंड होता है, वो थोड़ा सा हीट जनरेट कर देता है. हीट जनरेट करते ही दैट केमिकल विल बिकम अनस्टेबल एंड दैट केमिकल इज व्हाट, सोडियम अजाइड, एंड it will release a gaseous product, that is what, nitrogen gas, which will help in changing the volume. उसको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एयर गैस में जाके फिल कर देगा. So chemical conversion which is responsible for this is sodium azide into nitrogen gas, but also remember कि उसका एक बाई प्रोडक्ट सोडियम होता है which is dangerous. सोडियम अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो डेंजरस होता है, रिएक्टिव होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ और केमिकल्स डाल के उसको डाइल्यूट, उसकी इंटेंसिटी को डाइल्यूट करते हैं. दिस इज इट गाइज इन टुडेज वीडियो. एंड देखने में तो बहुत सिंपल है, बट अगर कोई क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में अगर कुछ प्रोसेस में चेंज आ जाए और दी केमिकल्स के जो नेम हैं वो कन्फ्यूजन हो सकता है हमें. सो कभी कभी आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं. सो टुडे वी हैव केप्ट ओनली वन क्वेश्चन, बट आई वांटेड कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को अच्छे से हो. ठीक है, सो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो. दिस वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन NDA 2023. बेसिक है, जब पॉलिसी आ रही है तो इसके पीछे की वर्किंग और इसके पीछे का प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए. The whole world is focusing on the policy and the principle. 6 बैग आ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी. But UPSC has focused on the functioning aspect, the principal aspect. ऐसे साइंस एंड टेक के अप्लाइड एस्पेक्ट पे यूपीएससी की बहुत नजर होती है. So be attentive, right? Now guys, we have in every video I have already told you about the current affairs classes, the video program and the PDF program, current affairs, quick bites, the video program where you don't need to worry about the compilation, newspapers. So today I'm not going to tell you about the features of this program, लेकिन आज मैं कुछ खास बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ.
खास बात यह है कि वी आर कंपाइलिंग, जो भी हम लोगों ने इस कोर्स में जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, वी स्टार्टेड दिस कोर्स इन अगस्त 2022 और हम लोगों ने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 इयर्स का करंट अफेयर्स कवर किया है। जनवरी 2022 से मई 2023 तक का करंट अफेयर्स कंपाइल करके मिलेगा 15 मई तक का। सो द स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम दे आर गेटिंग इट। उनकी क्लासेस होती हैं, पीडीएफ मिलते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, वो सब अलग बात है। अभी आप लोगों के लिए हम लोग कुछ लेके आने वाले हैं एंड व्हाट इज दैट, वी आर कंपाइलिंग द टॉपिक लिस्ट। जो भी टॉपिक हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है क्लासरूम प्रोग्राम में या पीडीएफ क्विक बाइट्स के थ्रू, द सेम टॉपिक्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू। टॉपिक लिस्ट होगा, on one side the topics will be given and in front of that we have also written that why they were in news. Briefly we have written why they were in news. So it is not the current affairs compilation, तो उससे मत कंफ्यूज होना। By now we understand and we are very sure that you would have identified your current affairs source, चाहे वो कंपाइलेशन हो या कोई कोर्स हो या आप खुद हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पढ़ रहे हैं, वॉट एवर इट इज, by now you would have identified your sources, respective sources. You would have also started the revision also. Now how we are going to help you, हम आपको वो टॉपिक लिस्ट देंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिपोर्ट्स इन न्यूज, लोकेशंस इन न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज, बाकी सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो ऐसे कंपाइल करके हम आपको देंगे। व्हाट यू हैव टू डू एट योर एंड is that you keep it with you whenever you are revising your current affairs compilations, your notes or videos, whatever is your source. At that time, you just quickly go through that topic list and make sure that you are not losing out on those topics. अगर आपके सोर्स में नहीं है, हम लोगों ने उसका ये भी लिखा है why it is in news, गूगल करो और तुरंत देख लो। So we are giving the whole list, जो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है वो सारी लिस्ट हम आपको देंगे। Just make use of it for quick revision and make sure that you should not leave any topic. Still we have sufficient time. In a day or two we will give it to you. Now only one thing is required. All those who are interested, we want, if you are interested in getting this topic list, we want you to drop a message at our Telegram ID, which is @ERITADMIN। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस टेलीग्राम आईडी पे एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा @ERITADMIN। ओके, सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, let us know on this Telegram ID and then we will provide you that topic list. That is it guys in today's video. Enjoy, take care of your health and do revise. और अभी बहुत सारा ट्रांजिशन, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोई वेदर की वजह से पड़ रहा है, कोई फूड पॉइजनिंग की वजह से पड़ रहा है। डोंट एक्सपेरिमेंट, कीप योर फूड सिंपल एंड टेक केयर ऑफ हेल्थ, यू कैन नॉट अफोर्ड। ओके गाइज, सी यू ऑल, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।